हम इन दोनों ने बहुत अच्छा बताया, लेकिन मैं जब से मेडिटेशन मैंने ऑनलाइन ही सीखा है बीके शिवानी से, दीदी से, उनसे, तो मुझे ये पता चला है कि हमारे जो 5 एलिमेंट्स है, हम जब उनको ग्रैटिट्यूड देंगे, जल, वायु, अग्नि, आकाश, पृथ्वी, क्योंकि हम सब उनके ऊपर ही डिपेंड है, हमारी सुबह से लेकर रात तक पूरे हम 5 एलिमेंट्स के ऊपर ही डिपेंड है, तो उनको हम ज़्यादा कुछ नहीं लेकिन ग्रैटिट्यूड की भावना रखेंगे तो अर्थात हमारी वाइब्रेशन वैसी चलती जाएंगी और एनवायरनमेंट के लिए वो बहुत अच्छा होगा। ओम शांति। अगला ग्रुप करेज। Om Shanti. My name is Nishita. I am representing my group Courage. So first problem is, so the topic is challenges of our family in day-to-day life. So first problem is conflict. Nowadays conflicts have been increased so much, like misunderstanding, unnecessary fights, there are so much fights which are occurring like day to day. And apart from that, there are burden on kids which are having due to studies and so many issues. So my brother will tell you the solution for the same. सॉल्यूशन, जो अवगुण में गुण देखते उसे गुण ग्रहित दृष्टि कहते हैं। अगर फैमिली में हम लोग जैसे हस्बैंड वाइफ दूसरे का अवगुण ना देखे गुण देखे तो जो डिवोर्स केस बढ़ रहा है वो ख़त्म हो जाएगा और प्रॉब्लम फैमिली का मैक्सिमम प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। So the second topic, sorry. So the second one is comparison. There is a lot of comparison as such looks, the things which we take like from each and everything, from cell phone, from our school, and many small things which are creating the comparison, and it also affects the mental health of our children. So solution will given by my brother. कंपैरिजन मतलब तुलना। जीवन में कभी भी किसी से अपनी तुलना मत करिए। आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। ईश्वर की हर रचना अपने आप में सबसे उत्तम है, अद्भुत है। कोई भी अपने आप में छोटा या बड़ा नहीं होता। हमारा तुलनात्मक नजरिया उसे छोटा या बड़ा दिखाता है। धन्यवाद। So the third challenge is nuclear family. It happens mostly due to luxury life, or they want to live independently. So this will be explained by my sister. Om Shanti. The solution of nuclear family is the power of adjustment. हम आज के टाइम पर एक दूसरे की फीलिंग्स को ना समझ करके अपनी फीलिंग्स को आगे रखते हैं। अगर इसी चीज़ में हम अपनी फीलिंग्स को और सामने वाले की फीलिंग्स को दोनों को समझें तो जो रिश्तों में मधुरता है वो बनी रहेगी और चीज़ों को फॉरगिव करना है, लेट गो करना है, जिसकी वजह से जो भी प्रॉब्लम्स एक दूसरे के बीच में आती हैं उसको अंडरस्टैंड करना है। तो जो ये सल्यूशन है वो उसकी वजह से जो मधुरता है वो बनी रहेगी। So the fourth challenge is generation gap. This is just because of thinking never matches. So because of this, solution will be given by my sister. Om Shanti. Solution is power of accepting and respecting each other. Parents and children एक दूसरे को accept और respect करेंगे तो ये problems नहीं आएंगी. Thank you. Fifth challenge is single parent, which is already explained by our Didi. But apart from that, there is a lot of effect on mental health by which the student are not able to achieve whatever their goal is in their life. So that will be also explained by one of my sister. Om Shanti. The single parent should have the capacity to tolerate the whatever they face in their life. So they should have the tolerance in their life. That's it. So the seventh challenge is social media. Everyone is aware for the same, but no one is taking the initiative for the same. And due to this, there is an extreme addiction. So the solution will be given by my brother. ओम शांति। आजकल आप लोग देख रहे होंगे सोशल मीडिया काफ़ी यूज़ की जाती है। स्क्रॉल डाउन, उसमें काफ़ी टाइम निकल जाता है। तो ये भी है, एक ओवर थिंकिंग का नतीजा होता है। अपनी थिंकिंग को कंट्रोल करना चाहिए। और इसको कैसे कर सकते हैं? सेल्फ कंट्रोल एंड सेल्फ डिसिप्लिन। और उसके लिए क्या करना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा कि यहाँ ओम शांति में बताया जाता है, मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन से हमें पता चलता है कि हमें अपनी थॉट्स को कैसे आगे बढ़ाना है।
उसके लिए हम लोगों को अपने गोल पे फोकस करना चाहिए, ना कि सोशल मीडिया को ज़्यादा कंज्यूम करना चाहिए। जब हम अपने गोल पे फोकस करेंगे तो हमारी थिंकिंग भी लिमिट होगी और उससे सोशल मीडिया का जो कंजप्शन है वो भी कम होगा। और फॉर एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए हमें और सारे साधन देखने चाहिए, ना कि मोबाइल में ज़्यादा टाइम वेस्ट करना चाहिए। ओम शांति। Thank you for listening. Om Shanti. ओम शांति। अगला ग्रुप हमारा- ऑनेस्टी का तैयार है। हमारा टॉपिक है सोसाइटी ऑफ चैलेंज। जो सोसाइटी में रहते हुए जो चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, हम उसी के ऊपर कुछ आपको बताना चाहते हैं। हमारी सोसाइटी में बहुत सारे चैलेंजेस हैं, जैसे कि लैक ऑफ एजुकेशन, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। हम इसमें सबसे बड़ा चैलेंज जो सोसाइटी का मानते हैं वो है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। कास्ट को लेके सोसाइटी में बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं और जिसका फ़ायदा पॉलिटिकल पार्टियाँ बहुत अच्छी तरह यूज़ करके नहीं करती हैं अपने पॉलिटिकल सपोर्ट के लिए। उन्होंने ही अपने पॉलिटिकल इश्यूज़ के लिए बहुत सारी पार्टियों को बना दिया है, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। लेकिन ये सब होना नहीं चाहिए। इनके रहते सोसाइटी में भेदभाव बनता है, एक दूसरे के प्रति हीन भावना उत्पन्न होती है, जो कि नहीं होनी चाहिए। इसके कुछ सॉल्यूशन भी है हमारे पास और ये प्रॉब्लम है सोसाइटी की, मतलब सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कास्ट। सॉल्यूशन मेरी फ्रेंड बताएंगी। एक ही सॉल्यूशन है इन सारी चीज़ों का, वो है प्रॉपर एजुकेशन। एजुकेशन पाइथागोरस थ्योरम वाली नहीं, मतलब एजुकेशन वैल्यू बेस्ड एजुकेशन। हम क्या जानते हैं कि मतलब हम जानते हैं कि धर्म है, कलर है, सोसाइटी है, हम उसके हिसाब से डिस्क्रिमिनेट करते हैं। हम कभी ये नहीं जानते कि लोग एक हैं, आत्मा एक है, सोल एक है, हम सब एक हैं। तो हमें पहले वैल्यू बेस्ड एजुकेशन सबको मिलेगी तो सब एक दूसरों को एक उसमें रखेंगे, मतलब समानता से सबके बारे में सोचेंगे। दूसरा सॉल्यूशन है कि अपन को एजुकेशन में स्किल्स भी सिखानी चाहिए, कि उससे एक और मेन प्रॉब्लम होती है अनएम्प्लॉयमेंट, कि है ना, लोग बहुत अनएम्प्लॉयड हैं। तो अगर स्किल बेस्ड एजुकेशन होगी तो लोग अपनी खुद की अपॉर्चुनिटीज़ देखेंगे, खुद ही अपने लिए कमाई का रास्ता बनाएंगे। तो सॉल्यूशन और एक धर्म, एक जाति, एक आत्मा, एक परमात्मा, मतलब दिस इज एजुकेशन, कि वी हैव टू एजुकेट एवरीवन कि वी आर वन, वी आर अ सोल। ओके, थैंक यू। अभी हम अपने श्रवण सिंह भाई से कुछ समय शार्ट में इसी 6 ग्रुप का सार सुनना चाहेंगे। आपके क्या विचार हैं? आप अपने संक्षिप्त विचार प्रस्तुत करें।